Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It is English compulsory for BSc 4th year. Today we are here to discuss about the chapter Where Do Those Bright Ideas Come From by Lancelot White. First of all, we will take the introduction to the author. Lancelot White is interested in science and technology. He has written many books and essays on the subject of science. The present essay is a chapter from his book Explanation. Here he has tried to trace the source of great ideas. In this sense, the essay is scientific as well as psychological. The writer believes that in great ideas and inventions that we give to the world, the subconscious is more important than the conscious. So, here we can discuss the three divisions of mind: conscious, subconscious, and unconscious. The part of the human mind that is aware of the feelings, thoughts, and surroundings is called conscious self. Subconscious is the part of the mind that stores memories from any events of our past that can influence our behavior. The unconscious is the division of mind containing elements of psychic makeup, such as memories or crushed desires that are not subject to conscious thoughts and behavior. It includes dreams and uh, sleep like trance. We can study his views under four headings. Number one, sudden emergence of new ideas. In this essay, the writer discusses in detail the sources from which bright ideas come to our mind. In his view, there are many sources from which great ideas spring. According to the writer, new ideas burst into our mind in a flash when we least expect them. They come to us. Dewey, a famous educationist, calls this emergence of new ideas a leap in thought. यानी आइडियाज़ अक्सर उस वक्त आते हैं जब हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, यानी जब हम सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उस वक्त तो वो हमारे माइंड में नहीं आती, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं और किसी दूसरी चीज़ की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं तो अचानक वो चीज़ जिसके बारे में हम पहले सोच रहे थे उसके बारे में कोई आइडिया सडन फ्लैश की सूरत में आ जाता है। इसको वो लीप इन थॉट यानी अचानक ख्याल की छलांग कहता है। In the writer's view, creative activity depends in some degree on signals from the unconscious. तो इसको राइटर ये कहता है कि ये जो हमें अचानक ख्यालात आ जाते हैं ये हमारे अनकॉन्शियस में, जिसको लाशऊर कहते हैं, वहाँ से कोई सिग्नल्स आते हैं, वहाँ कोई चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे स्टोर हाउस में हमारी चीज़ पड़ी होती है और ज़रूरत के वक्त हमारे वो काम आ जाती है। तो इसी तरह अनकॉन्शियस से सिग्नल्स आ जाते हैं जो हमें क्रिएटिव एक्टिविटी करने में हेल्पफुल होते हैं। दीज सिग्नल्स आर शार्पर एंड मोर ड्रामेटिक इन हाईली इंट्यूटिव पर्सन्स। अब यहाँ उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं ग्रेट राइटर्स की, म्यूजिशियंस की, मैथमेटिशियंस की, जिनको इसी तरह के सडन आइडियाज़ बर्स्ट आउट करते थे और वो कोई चीज़ न्यू इन्वेंट कर लेते थे। तो ये राइटर का कहना है कि वी थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम, वी थिंक ओवर इट, वी आर टायर्ड बट वी डू नॉट फाइंड एन आंसर टू इट। हम बहुत किसी की चीज़ के मसले के बारे में सोच रहे होते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, आखिर थक हार कर उसको छोड़ देते हैं। But suddenly the answer comes to us while we are playing or busy in taking tea or sleeping or doing any such thing. It is true that all ideas do not come like that. They burst into the mind glowing with the heat of creation. How they do is a mystery.
ये अभी तक एक तजस्सुस ही है कि कहाँ से अचानक ये आ जाते हैं, बट इट इज़ अज्यूम्ड दैट दे कम फ्रॉम अनकॉन्शियस। लेकिन ये ख्याल किया जाता है ये अनकॉन्शियस माइंड का जो सेल्फ है, जहाँ दबी हुई होती हैं चीज़ें, वहाँ से निकल कर किसी भी वक्त जब हम सो रहे होते हैं या किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं या उसको तर्क करके अपनी डेली रूटीन में बिज़ी होते हैं, तो वो उभर कर सामने आ जाते हैं और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटी में हेल्पफुल होते हैं। दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ऑल द ग्रेट फिगर्स। अब ये बहुत से उसमें एग्जांपल्स दी हैं ग्रेट फिगर्स की, जिन्होंने ऐसे ही बहुत सी क्रिएशंस की हैं। इट सीम्स दैट ऑल ट्रूली क्रिएटिव एक्टिविटी डिपेंड्स इन सम डिग्री ऑन द सिग्नल्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस। इसके लिए उसने एग्जांपल दी है कि वैगनर, a famous musician, wanted to compose a piece of music but could not. The composition came to his mind in a trance-like state. जब वो ख्वाब की सी सूरत हाल में था, यानी कुछ नींद की हालत में और कुछ कॉन्शियस सेल्फ में, तो उसको कंपोजिशन उससे बन गई और उससे वो म्यूज़िक बन गया। हेनरी पॉइनकेयर, a French mathematician, formed a solution to a problem unconsciously. तो ये हेनरी पॉइनकेयर भी अनकॉन्शियस स्टेट में था, यानी नींद की हालत में था, जब उससे एक मैथमेटिक का सॉल्यूशन हो गया जो कि आम कॉन्शियस हालत में उससे नहीं हो रहा था। डेस्कार्ट, अ फेमस फिलोसोफर, सेज हिज ड्रीम्स डिटरमिन्ड द पाथ ऑफ हिज लाइफ। तो इस तरह वो ये बड़े लोग ये कहते हैं कि ड्रीम्स और ये दूसरी सिचुएशन ऑफ लाइफ जिसमें वो बिज़ी होते हैं, उसमें अचानक ही उनका पाथ ऑफ लाइफ डिटरमिन हो जाता है, उन्हें उनसे कुछ ऐसा काम हो जाता है जो उनके फेमस होने का बायस बन जाता है और जो ग्रेट क्रिएशन का और वर्ल्ड के लिए एक ग्रेट इन्वेंशन का बायस बन जाता है। So these experiences show that the unconscious is certainly the source of instinctive activity. तो अनकॉन्शियस सेल्फ जो है वो हमारा कहीं सोया नहीं होता, बल्कि वो भी वर्किंग में होता है। और बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन में जब हमारी कॉन्शियस सेल्फ में वो बात नहीं हो रही होती, तो वो अनकॉन्शियस से इन अदर टाइम्स वो जंप आउट करके आ जाती है और वो हमारा क्रिएटिव एक्टिव करने में मदद देती है। तो राइटर ने इसी को नाम दिया है कि ब्राइट आइडियाज़ कहाँ से आती हैं, तो उसको उसने सॉल्व करने की कोशिश की है इस मिस्ट्री को। तो ये सारी एग्जांपल्स उसने बहुत से ग्रेट राइटर्स की और इन्वेंटर्स की दी हैं, जिन्होंने ऐसे इन्वेंशंस सडन ही की। अब जैसे उसने एक केमिस्ट केक्यूल की एग्जांपल दी है। द केमिस्ट केक्यूल सॉ द एटम्स डांसिंग इन द मिड एयर, सो कंसीव्ड हिज थ्योरी ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग्स वाइल राइडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए लंदन बस। कि लंदन बस की टॉप पे वो सफ़र कर रहा था कि उसको मिड एयर में कोई एटम्स की नज़र आए डांसिंग, और उसकी थ्योरी जो थी उसी वक्त उसने उसकी बना डाली एटॉमिक ग्रुपिंग्स की। तो हेल्महोल्ट्ज़ जर्मन साइंटिस्ट है और फिलोसोफर है। वो कहता है कि हैप्पी आइडियाज़ कम पर्टिकुलरली रेडिली ड्यूरिंग द स्लो असेंट ऑफ हिल्स ऑन ए सनी डे। कभी पहाड़ों पर चढ़ रहे हों सनी डे में, तो अचानक अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि थिंकर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट हैव ऑल डिस्क्राइब्ड द सेंस ऑफ प्रिसीजन एंड इनएविटेबिलिटी, the loss of freedom of choice or feeling of possession by impersonal force। कि जब वो सोच रहे होते हैं तो उस वक्त उनके पास ऐसे नहीं आते, लेकिन फिर क्रिएटिव मूवमेंट ऐसी आती है जिसमें अचानक उनसे कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाता है। जैसे विलियम ब्लेक फेमस पोइट है, वो डिक्लेयर करता है, आई हैव रिटन द पोएम विदाउट प्री मेडिटेशन एंड इवन अगेंस्ट माई विल। कि अचानक मेरे से नज़म जो थी कंपोज हो गई, जब मैंने उसके बारे में पहले सोचा भी नहीं था और मेरा कोई इरादा भी नहीं था। सो
रसल वेलेस, अ फेमस थिंकर, वो एक्सप्रेसेस द व्यू ऑफ मैनी थिंकर्स इन सेइंग, वो अपनी सेइंग में बहुत से थिंकर्स के व्यूज़ को इस तरह पेश करता है, आइडियाज़ एंड बिलीव्स आर नॉट वॉलंटरी एक्ट्स, कि आइडियाज़ बिलीव्स जो हैं उनको हम वॉलंटरी एक्ट नहीं कह सकते, यानी हम जानबूझकर अपनी मर्ज़ी से उन्हें नहीं कर सकते, बल्कि अचानक ही वो किसी वक्त बिन बुलाए ही आ जाते हैं। इसके बारे में इसको बर्नार्ड शॉ ने ऐसे एक्सप्लेन किया था, बर्नार्ड शॉ सेज द वॉइसेस कम फर्स्ट एंड आई फाइंड द रीजंस आफ्टर, पहले ख्याल आता है और फिर उसके बाद कोई चीज़ बन जाती है। तो इसको प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी कहा है राइटर ने। Writer says that there are 4 striking features of the process of creative activity. First, the creative activity takes place in sudden flashes. कि creative activity अचानक होती है while we are getting into a bus, playing some game, diving in the water or strolling. जब हम कोई गेम खेल रहे हों या पानी में नहा रहे हों या टहल रहे हों, अचानक ही कोई ख्याल आ जाता है जिस वक्त के हमने उसके बारे में सोचना छोड़ा होता है। सेकंड, उसने कहा है क्रिएटिव एक्टिविटी किस वक्त होती है, स्लीपिंग ऑन इट, यानी हम स्लीपिंग ऑन इट का मतलब है किसी बात के बारे में सोचते हुए या उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर थिंक ओवर करते हुए सो जाते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट्स। द क्रिएटिव एक्टिविटी इज़ एट इट्स पीक व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, और राइटर के ख्याल में जब हम सुबह उठते हैं तो क्रिएटिव एक्टिविटी का जो उस वक्त काम जो है उसका अरूज पर होता है, यानी उस वक्त क्रिएटिव एक्टिविटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थर्ड, क्रिएटिव एक्टिविटी इज़ नॉट अ वॉलंटरी एक्ट, ये कोई अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं हम कर सकते कि जिस वक्त हम चाहें कुछ क्रिएशन कर लें। इट इज़ सडन एंड इज़ ऑफन स्टार्ट्स अगेंस्ट आवर विल, अचानक ही कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाता है, जैसे हमने बहुत सी एग्जांपल्स भी देखी हैं फिलोसफर्स की, राइटर्स की, इन्वेंटर्स की, सिंगर्स की, कंपोज़र्स की, जिन्होंने अचानक उन्हें कंपोजिशन हो गई या साइंटिस्ट से कोई चीज़ इन्वेंट हो गई और ख़्याल आ गया अचानक ही। तो इसी तरह ये अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकता। फोर्थ, वी हैव नो जस्टिफिकेशन फॉर द क्रिएटिव एक्टिविटी, इसके लिए हम कोई जवाज़ नहीं पेश कर सकते। न्यू आइडियाज़ कम बिफोर दे कैन बी जस्टिफाइड और अप्लाइड, नए ख्यालात खुद ब खुद आ जाते हैं कि हम उनके कोई जवाज़ नहीं पेश कर सकते। फिर उसने बताया है कि 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, तख्लीकी अमल के 4 दर्जे होते हैं, मराहिल होते हैं। लॉन्सिलॉट वाइट कोर्स, ग्राहम वॉल वेलॉज, एन इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट who has divided the process of creative thought into 4 stages. The first is the conscious preparation. कि कॉन्शियस प्रेपरेशन क्या होती है कि हम सोचते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में जब हम कॉन्शियस सेल्फ में होते हैं, यानी सोच समझकर, जानबूझकर, जानते बूझते हम किसी मसले के बारे में हल करने के लिए सोच रहे होते हैं। एट दिस स्टेज वी प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर वट वी आर टू प्रोड्यूस, इस वक्त तो हम खुद मेहनत कर रहे होते हैं कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, उसको कैसे करना है, उसकी स्टेजेस के बारे में सोच रहे होते हैं। तो सेकेंड स्टेज क्या आती है, इट इज़ कॉल्ड द अनकॉन्शियस इंक्यूबेशन। जैसे इंक्यूबेशन में किसी चीज़ को रख लिया जाता है थोड़ी देर में, तो उसमें फिर अनकॉन्शियस में हमारी वही सोची हुई चीज़ें, हमारी कोशिश जो है इंक्यूबेशन में चली जाती है। इट मीन्स कीपिंग आवर वेग आइडियाज़ वार्म अनटिल दे टेक सम शेप। तो वहाँ वो आइडियाज़ हमारे पड़े तो रहते हैं लेकिन वो वार्मथ में होते हैं, यानी वो सोए नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो उन पे प्रोसेस चल रहा होता है और वो अपना काम कर रहे होते हैं टू फाइंड आउट सम वे। द थर्ड स्टेज इज़ द फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन, और तीसरी स्टेज ऐसी होती है जब कोई चीज़ उभर कर एक फ्लैश की सूरत में चमक कर हमारे सामने आ जाती है। इट मीन्स सडन कमिंग ऑफ न्यू आइडियाज़ बिफोर अस, इसका मतलब है कि एक ख्याल अचानक हमारे सामने उभर कर आ जाता है। द फोर्थ स्टेज इज़ कॉन्शियस वेरिफिकेशन, और चौथी स्टेज जो फोर्थ स्टेज में हम फिर उसको सोच समझ कर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं और फिर उसकी एप्लीकेशन कर देते हैं, यानी हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं।
इट मीन्स कन्फर्मेशन ऑफ थॉट कमिंग टू अस कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो वो सोचें जो हमारे कॉन्शियसली आ रही होती हैं या अनकॉन्शियसली आ रही होती हैं, उनकी तस्दीक करके हम किसी चीज़ को, न्यू चीज़ को इन्वेंट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्रिएटिव एक्टिविटी जो है इज़ एविडेंट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ कल्चर, हमें हर जगह की सकाफत में नज़र आती है। सो ग्रेट आइडियाज़ कम आउट ऑफ द कंबाइंड वर्किंग ऑफ द अनकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस टुगेदर। तो हम यहाँ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आइडियाज़ हमारे कॉन्शियस सेल्फ से ही नहीं, ग्रेट आइडियाज़ आते या ब्राइट थॉट्स आती या ब्राइट आइडियाज़ आते कि हम सोच समझ कर कॉन्शियस में उसको नहीं ला सकते, बल्कि ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कंबाइंड वर्किंग होती है अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस टुगेदर, उन दोनों की। The idea of composition of ring is the famous orchestra came to वैगनर्स माइंड ऑल ऑफ ए सडन। जैसे हमने देखा था वैगनर का एग्जांपल कि उसके कंपोजिशन ऑफ ऑर्केस्ट्रा जो थी अचानक ही उसके जहन में आ गई थी और उसने उसको सोचने के बावजूद उसे ना आई, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस में बिल्कुल मतलब स्लीपी कंडीशन में था तो उसको आ गई। तो ये फिर कॉन्शियस में उसने कोशिश की और जब वो अनकॉन्शियस में था तो उन दोनों की वर्किंग से उसको ये कंपोजिशन मिल गई। सो ड्रीम्स आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैनी ऑफ आवर ग्रेट आइडियाज़। तो यहाँ फिर राइटर का हमें ये आइडिया मिलता है कि ब्राइट आइडियाज़ कहाँ से अक्सर आते हैं, ड्रीम्स, जो हमारे बहुत से ग्रेट आइडियाज़ के सोर्सेज हो सकते हैं। So Descartes, another religious scholar, claims that he could find certainty in his thoughts through certainty in his thoughts through dreams. Yeats, the great Irish poet, conceived many of his poetic ideas in trance or dreams. All the great artists, poets, thinkers, and scientists have discovered new ideas and theory in moments of relaxation, dream, and odd moments of inactivity. तो यहाँ फिर राइटर इस चीज़ को ही बताना चाहता है हमें कि all the great and bright ideas come from mostly from unconscious self because they come in the moments of relaxation, dream and odd moments of inactivity। यानी हम जब एक्टिवली उनके बारे में सोच नहीं रहे होते, कॉन्शियसली उन पर एक्ट नहीं कर रहे होते, पैसिव मूड में होते हैं, तो ब्राइट आइडियाज़ अचानक आ जाते हैं जो क्रिएशन का बायस बनते हैं। तो इसके एंड में हम इसको यूँ कंक्लूड कर सकते हैं कि इन द एंड ऑफ सजेशंस एक ऑर्डनरी पर्सन के लिए यूँ दे सकती हैं, सजेशंस फॉर एन ऑर्डनरी पर्सन। इन द एंड ऑफ द एसे द राइटर गिव्स सर्टेन सजेशंस फॉर एन ऑर्डनरी पर्सन टू हैव ग्रेट आइडियाज़। कि अगर कोई चाहता है कि उसको ग्रेट आइडियाज़ मिलें और वो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करे तो उसको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ही शुड डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। ज़ाहिर है आइडियाज़ उसी वक्त आते हैं जब आपकी वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी उसके लिए आपके पास ब्रॉड विज़न भी होना चाहिए, आपकी स्टडीज़ जैसे एक्सटेंसिव होनी चाहिए, आप की वर्ड के बारे में आपकी नो हाउ यानी आपकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। यानी कॉन्शियस सेल्फ से कुछ गेन किया हुआ होगा तो वही हमारे फिर अनकॉन्शियस में होगा पड़ा हुआ और जो निकल कर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ उस पर पहले हासिल नहीं करना, पहले हमने उसको कॉन्शियसली कंसीव करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और वो हमारे फिर कभी ना कभी काम आ जाएगा। तो इसलिए उसने कहा है कि वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए। सेकंड, उसने ये सजेशन दी है कि व्हेन अ टास्क मेक्स नो प्रोग्रेस ही और वन शुड लीव इट फॉर सम टाइम। आप किसी काम पर बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपसे उस वक्त उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो उस वक्त छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि बाद में उसके ऊपर आपका खुद ही ब्रेन जो है वर्क करने लगेगा इन द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन।
थर्ड, ड्यूरिंग वर्क पीरियड्स ऑफ रिलैक्सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जब काम बहुत ज़्यादा फटीग वाला हो तो उसमें रिलैक्सेशन के थोड़े से हमें पॉजेज़ लाने चाहिए जहाँ हम रिलैक्स कर सकें, यानी उसमें हम ब्रेक्स लानी चाहिए, तब भी हमारा काम जो है, हमारा ब्रेन सही तरह वर्क करेगा। लास्ट, ही शुड नॉट मेक हेस्ट इन एनीथिंग। और वो लास्ट ये उसकी सजेशन है कि किसी चीज़ में जल्दी ना करें, बल्कि उसको टाइम दें। ज़रूरी नहीं है कि आज आप कोई सोच रहे हैं और आप उसको कंक्लूड नहीं कर सक रहे, या उसको आपको रिज़ल्ट ही मिल रहा, या आपके सामने उसकी बात नहीं आ रही, प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप उसको फ़िलहाल छोड़ दें। इसी तरह किसी न किसी वक्त अचानक एक फ्लैश की सूरत में आपको उसका हल मिल जाएगा और आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए हेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वन शुड बी पेशेंट टू अचीव अ डेफिनेट रिज़ल्ट। अगर कोई पेशेंटली किसी चीज़ पर वर्क करेगा तो यकीनन वो उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिवली हासिल कर लेगा। तो यहाँ फिर उसने ये 3 डिविजन्स ऑफ माइंड के थ्रू हमें बताने की कोशिश की है कि आइडियाज़ मोस्टली कम फ्रॉम सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस टू द कॉन्शियस सेल्फ, एंड ऑल द 3 divisions of mind, all the 3 parts of mind help to create something new and help us in